अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to discuss unit number 5, The Rain. This is a poem written by the W.H. Davies. First of all, I am giving you some brief introduction or summarization of this poem. The Rain is a beautiful poem written by W.H. Davies, who is a great admirer of nature. The poem describes symbolically the nature occurrence of rain. Rain falls on the top of the dense foliage. These thick leaves drink the rainwater first, then pass it to the lower thin leaves, drop by drop. The top thick leaves represent wealthy people who receive the majority of the blessings but give very little alms to the poor. Raindrops hitting the thick leaves of a tree create soft music. It makes the poet happy. The poet claims in the second stanza that when the rain stops, the sun will emerge from the clouds. It will light up everything, even the dark round raindrops. It will illuminate everything, including the dark round raindrops. Uh, its light will be evenly distributed throughout the room. This will result in a lovely and pleasant scene. Here, the poet wishes for the day when the painful disparities between rich and poor will be eliminated. Peace and equality will prevail in society. It has shown the two types of leaves, the leaf on the top of the tree and those at the bottom of the tree. Tree symbolizes a society. Leaves of the top of the tree, which are rich leaves, symbolizes the rich people, while the bottom leaves stand for the deprived segment of the society or the poor people. The poem describes the rich getting the opportunities first and then pass on the opportunities to the poor. Falling droplets produce a melodious sound. This sound is the sound of happiness that the deprived ones get when they see an opportunity to fulfill their needs. The poet shows a disparity or difference in the lives of the poor and the blessed ones. The poet hopes for the sun to shine bright and fill every darkest corner of the tree, meaning he wants everyone in the society to get equal opportunities. The poet thinks it would promote harmony in the society. So, students, this was a brief introduction about the chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First question is about the vocabulary. A question: give an antonym for each given word and make sentences with both words. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका एंटोनियम एंटोनियम होता है बेटा उल्ट, यानी कि मुतजाद वर्ड्स उनके लिखने हैं और फिर उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वर्ड इज़ रिच। रिच का एंटोनियम क्या होगा? पुअर। और सेंटेंस क्या बनेगा? रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। और पुअर का क्या बनेगा? द पुअर बेयर मैनी हार्डशिप्स। ठीक है, तो वर्ड है टॉप और उसका एंटोनियम होगा बॉटम। टॉप यानी कि ऊपर और बॉटम नीचे। सेंटेंस होगा आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। और बॉटम का सेंटेंस होगा द क्रो लिव्स एट द बॉटम ऑफ दिस ट्री। नियर यानी कि नज़दीक, फार यानी कि दूर।
माई स्कूल इज़ फार अवे फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। और लिव नियर का क्या होगा, आई लिव नियर द स्कूल। लाइट रोशनी, डार्क अंधेरा। डार्क का होगा इट इज़ वेरी डार्क इन द क्लासरूम, और लाइट का होगा सन इज़ द बिगेस्ट मीन ऑफ लाइट। नॉइज़ यानी कि शोर, और साइलेंस यानी कि खामोशी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिग प्रॉब्लम इन द सिटीज़, और साइलेंस का सेंटेंस होगा साइलेंस इज़ अ विर्चू, खामोशी एक इबादत है। लवली प्यारा, अगली बुरा कह सकते हैं हम इसको, या बदनुमा। रोज़ इज़ अ लवली फ्लावर, गुलाब जो है प्यारा फूल है। और अगली, इंडिया हैज़ एन अगली फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वोकेबलरी, डिनोटेशन और कॉनोटेशन। डिनोटेशन क्या होगा, इट इज़ द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ के लुगत वाले मानी होते हैं। और कॉनोटेशन, इट इज़ द इमोशनल कंटेक्चुअल कल्चरल मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग, ये जज्बाती सियाको सबाक या तकाजी मानी होता है जो एक लफ्ज़ से मुंसलिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होम, होम के अंदर क्या आएगा, कोजी, लविंग, कंफर्टेबल, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। फिर आता है हाउस, हाउस के अंदर क्या आएगा, द एक्चुअल बिल्डिंग। देन है रेजिडेंस, रेजिडेंस का है कोल्ड विदाउट फीलिंग। और उसके बाद है ड्वेलिंग, तो ड्वेलिंग के अंदर क्या आएगा, प्रिमिटिव और बेसिक, ठीक है। ऐसे हमने इनको डिवाइड कर दिया उनके मीनिंग के हिसाब से। नेक्स्ट है बेटा डिनोटेशन, ऑल दोज वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच समवन लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पर तमाम रहते हों, ये कॉनोटेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑल्सो रिलेटेड टू द वोकेबलरी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है। फर्स्ट सेंटेंस, अदील वॉज सरप्राइज्ड, अदील वॉज अमेज्ड, अदील वॉज एस्टोनिश्ड। What is the general meaning of each of the three sentences about Adil? Do the words surprised, amazed and astonished have approximately the same denotation? वो पूछ रहे हैं कि ये तीनों जो हैं सेंटेंसेस, इनके अंदर सरप्राइज, अमेज और एस्टोनिश जो है, क्या इनका एक ही मतलब है, यानी कि एक ही लुग़वी मानी है इनका? सो द आंसर इज़ यस, दीज वर्ड्स हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम डिनोटेशन। जी हाँ, इन अल्फाज के तकरीबन एक जैसे ही लुग़वी मानी है। सेकेंड क्वेश्चन, यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड व्हाट एडिशनल मीनिंग आर सजेस्टेड बाय एस्टोनिश, डिक्शनरी को यूज़ करें और एस्टोनिश के मज़ीद मानी जो है उनको निकालें। सो एस्टोनिश मीन टू फिल विद सडन वंडर और अमेजमेंट, इट हैज़ नो अदर एडिशनल मीनिंग इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर एस्टोनिश का मतलब है कि अचानक से किसी हैरानगी होना या फिर इंसान का बहुत पुरजोश हो जाना, ठीक है। तो ये डिक्शनरी के अंदर इसका मीनिंग है। थर्ड क्वेश्चन, वुड अ पर्सन बी सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ गोस्ट, क्या एक भूत को देखकर एक इंसान जो है वो सरप्राइज हो सकता है या एस्टोनिश हो सकता है? अ पर्सन वुड बी सरप्राइज और एस्टोनिश्ड बाय सीइंग अ गोस्ट, यानी कि वाकई ही एक भूत को देखकर इंसान जो, शख्स जो है वो शशदर रह जाएगा, यानी कि सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू द वोकेबलरी, विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव, कॉनोटेशन के बारे में है कि कौन सी कॉनोटेशन जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट वन, आर ट्रिप टू द खेवड़ा माइन वॉज वंडरफुल, तो वंडरफुल जो है ये पॉजिटिव कौन सा वर्ड है, ठीक है। फाइन या वंडरफुल, इन दोनों में से कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिविटी को जाहिर कर रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। सेकंड है, ब्रेव पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर, इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, ब्रेव और फुल हार्डी, इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दे रहा है? तो यहाँ पर ब्रेव का जो है ये ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव। थर्ड वन, वी सा फैसिनेटिंग एनिमल इन द जू, तो यहाँ पर फैसिनेटिंग का वर्ड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। फोर वन, सम ऑफ द मंकीज मेड अम्यूजिंग फेसिस, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है, अम्यूजिंग का जो वर्ड है वो मोर पॉजिटिव है। फिफ्थ वन, एवरी वन हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस ऑन द वे होम, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है वो
मोर पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, विच कोनोटेशन इज मोर नेगेटिव? नेगेटिव वाइब कौन सी दे रहा है? वी बॉट इन एक्सपेंसिव सोवरेनियर एट द खेवड़ा माइन। तो यहाँ पर बेटा दो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज ए यानी कि चीप और बी इनएक्सपेंसिव। तो चीप का वर्ड जो है वो नेगेटिव वाइब ज़्यादा दे रहा है। आई एट अ सॉगी सैंडविच, यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव वाइब दे रहा है? तो सॉगी, ठीक है, ये नेगेटिव वाइब दे रहा है। आई डिडेंट लाइक द स्मिर्क ऑन द जेस्टर्स फेस, तो यहाँ पर जो है ग्रीन का वर्ड जो है ये नेगेटिव वाइब है। इट मेड मी फील फ्राइटेंड, तो यहाँ पर फ्राइटेंड का वर्ड नेगेटिव वाइब दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमने सिनोनिम्स इन वर्ड्स के फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज शाइन। शाइन का मतलब क्या होता है? चमकना, मीन्स इल्यूमिनेट। ब्राइट, रोशन होना, तो वेल लिट यानी कि अच्छी तरह से चमकना। नॉइज़, शोर, क्लैमर भी शोर होता है। लवली, प्यारा, ब्यूटीफुल भी खूबसूरत या प्यारा। तो ये सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट वन, व्हाट डज द पोइट हेयर? जो शायर है वो क्या सुनता है? सो द आंसर इज द पोइट हेयर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन। शायर जो है पत्तों पर बरसती हुई बारिश की आवाज़ सुनता है कि वो उनको पी रहे हैं। सेकंड, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज शायर के मुताबिक प्यारा शोर क्या है? सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ रेन ड्रॉप ऑन द लीव्स, ड्रॉप इज़ अ स्वीट नॉइज। बारिश जो है उसके कतरों की आवाज़ जो है वो एक प्यारा या दिल फरेब शोर है उसकी नज़र में। थर्ड वन, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप? बारिश रुकने के बाद क्या होगा? सो द आंसर इज आफ्टर द रेन स्टॉप अ वंडरफुल लाइट विल ईच डार्क प्लेस। एक सूरज नमूदार होगा और ख़ूबसूरत मंजर होगा और वो हर तरफ रोशनी फैला देगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन? बारिश के बाद सूरज कैसे नमूदार होगा? सो द आंसर इज आफ्टर द रेन स्टॉप्स द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड एंड फिल एवरी डार्क प्लेस विद इट्स लाइट। सूरज जो है वो बारिश के बाद बादलों के पीछे से नमूदार होगा और हर चीज़ को रोशन कर देगा। फिफ्थ वन, हाउ डज द लाइट्स फिल द ड्रॉप्स? सूरज की जो रोशनी है वो कतरों में कैसे भर जाती है? आफ्टर द रेन स्टॉप्स सन शाइन इट्स लाइट ऑन एवरी डार्क और राउंड ड्रॉप। बारिश के बाद जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी कतरों में भर जाती है जिससे वो चमकदार हो जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सीन लवली? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मंजिल को प्यारा बनाती है? सो द आंसर इज व्हेन द सन शाइन ब्राइटली ऑफन रेन आफ्टर द रेन इट मेक्स द सीन लवली। बारिश के बाद जब सूरज जो चमकता है तो वो उस मंजर को बहुत प्यारा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, रिलेटेड टू द कॉम्प्रीहेंशन, आइडेंटिफाई यूज ऑफ मेटाफर इन द पोइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। मेटाफर जो है या इस्तारा उसके इस्तेमाल को देखें और उन सवालों का जवाब दें। फर्स्ट वन, व्हाट डू द रिच लीव्स सिम्बोलाइज? घने पत्ते किस चीज़ की अलामत हैं? सो द आंसर इज द रिच लीव्स सिम्बोलाइज द रिच पीपल हु गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट एंड वट एवर रिमेन्स पास्ट टू द डाउन टू द पुअर पीपल। घने पत्ते अमीर लोगों को जाहिर करते हैं जो ज़िंदगी की आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और बचा कुचा जो हिस्सा होता है वो फिर बाद में गरीब लोगों के हिस्से में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, व्हाट क्लॉथ पुअर लीव्स स्टैंड फॉर? कम घने पत्ते किस चीज़ को जाहिर करते हैं? सो द आंसर इज द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल हु लिव ऑन वट एवर दे गेट फ्रॉम द रिच लीव। जो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं या कम घने पत्ते वो गरीब लोगों को जाहिर करते हैं जो अमीर लोगों से खैरात लेते हैं। थर्ड वन, व्हाट डज द सन सिम्बोलाइज? सूरज जो है वो किस चीज़ की अलामत है? द सन सिम्बोलाइज इक्वालिटी बिकॉज इट्स सन शाइन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली। सूरज जो है वो बराबरी की बुनियाद को जाहिर करता है, यानी कि जब सूरज चमकता है तो बराबरी की बुनियाद पर हर चीज़ को रोशन कर देता है। नेक्स्ट, personification. What is personification? It is a figurative language technique where an object or idea is given human traits or characteristics.
इस नज़म के अंदर एक तमसीली लिसानी तरीका है जिसमें किसी चीज़ या ख्याल को इंसानी खसूसियात दी जाती हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को सोचें और उसका इमेज आपके दिमाग के अंदर बन जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। देखिए, डांस करना ये एक ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसको किससे मुशाबे कर दिया, फ्लावर्स को दे दिया गया। ठीक है, इसको हम पर्सोनिफाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी related to the personification. Identify the use of personification in the poem and answer these question. इस पोइम के अंदर से पर्सोनिफिकेशन का जो है उनको इस्तेमाल को देखें और उन सवालों के जवाब दें। फर्स्ट वन, विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोइम। इस नज़म के अंदर किस चीज़ की तकसीम की गई है। सो द आंसर इज़ लीव हैव पर्सोनिफाइड इन द पोइम। पत्तों को तकसीम की गई है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन, विच ह्यूमन ट्रेट आर गिवन टू डैट ऑब्जेक्ट। इंसान की कौन सी खसूसियत जो है वो इसको दी गई है। ठीक है, सो द आंसर इज़ ह्यूमन ट्रेट्स लाइक डांसिंग एंड गिविंग टू लीव्स। यानी कि इंसानी जो है वो खूबी जैसा कि पीना, इंसान की खूबी है पानी को पीना। ठीक है, और ये पत्ते को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन is related to the grammar, transitive and intransitive verbs. First question, pick out the verb in each sentence and state whether it is transitive or intransitive. यहाँ पर हमने इन तमाम सेंटेंसेस को देखना है और इन बताना है कि ये ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव है। द सन शाइन्स ब्राइट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। सेकंड, आई हेयर अ नॉइज, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑल ड्राइव्स द कार केयरफुली, ट्रांजिटिव है। यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, ये भी ट्रांजिटिव है। सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, ट्रांजिटिव वर्ब है। 6 1, एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और 7th, शी नोज द सीक्रेट, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मेक 2 sentences with each of the given words. Use these first as a transitive verb and then as intransitive verb. ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से पहले ट्रांजिटिव में सेंटेंस बनाना है, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव में। राइट, ठीक है। इसको जब हम ट्रांजिटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राइट अ लेटर। और इंट्रांजिटिव में ही इज़ राइटिंग। प्ले, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। और ये इंट्रांजिटिव में डू नॉट प्ले हेयर। सिंग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, सैड सॉन्ग। और इंट्रांजिटिव, गर्ल्स आर सिंगिंग। रीड, ही रीड्स अ स्टोरी। और डू नॉट रीड हेयर इंट्रांजिटिव में। प्लान, द प्लान फ्लॉप्ड, ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। आई एम प्लानिंग, ये इंट्रांजिटिव है। मूव, प्लीज़ मूव योर कार, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस है। द ट्रेन इज़ मूविंग नाउ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रामर, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। मूवमेंट और डायरेक्शन के हिसाब से हमने प्रेपोजिशन लगानी है यहाँ पर। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, सारा इज़ गेटिंग आउट ऑफ द टैक्सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसी तरीके से हमने प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है। फर्स्ट वन, शराज इज़ गोइंग डैश द लेडर। शराज जो है कहाँ जा रहा है, लेडर के अप, यहाँ पर आएगा अप, यू एंड पी, अप। ठीक है, ऊपर जा रहा है। सेकंड वन, द फर्नीचर इज़ डैश द वैन। फर्नीचर इज़ इन द वैन, ठीक है, अंदर है वो, तो यहाँ पे इन लिखेंगे हम। थर्ड वन, माई फ्रेंड लिव्स इन अ फ्लैट डैश अ शॉप। तो यहाँ पे आएगा अबव अ शॉप। ठीक है, यहाँ पर आएगा थर्ड में अबव अ शॉप। फोर्थ वन, द बॉस इज़ कमिंग डैश द कॉरिडोर, अलोंग द कॉरिडोर। फिफ्थ वन, देयर इज़ अ गैराज डैश द हाउस। तो यहाँ पर आएगा बेटा इन फ्रंट ऑफ द हाउस कह लें या एट द बैक ऑफ द हाउस। 6, वी वॉकड डैश द लेक। वी वॉकड अराउंड द लेक, अराउंड आएगा यहाँ पर।
7. There's a statue dash the museum. In front of the museum. 8. Hassan and Ali are walking dash the stadium. Walking out of the stadium. ठीक है, ये हमने यहाँ पर सारी prepositions को fill कर लिया है. Next question D. Where did the fly go? Put in these preposition appropriately. यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं और उनमें prepositions को fill करना था. First one, it flew dash the chair. तो यहाँ पर आएगा around the chair. Second one, it crawled up the chair leg. यहाँ पर up का word use होगा. Third one, it stopped dash the desk for a moment. तो यहाँ पर on आएगा, on का word use होगा. Fourth one, it went up the telephone. यहाँ पर भी up का word use होगा. It flew into the drawer. ठीक है, यहाँ पर into का word use हुआ है. It went out the window. window से बाहर गया तो यहाँ पर out का word use हुआ है. Next question is about the active and passive voice. So the question E, put in the correct form of the verb to complete the following sentences in the passive. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं और सामने ब्रैकेट के अंदर आपको बताया गया कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है. So first one is we a letter the day before yesterday और verb दिया गया है to send. तो इसको देखते हुए जब हम सेंटेंस बनाएंगे बेटा तो कुछ ऐसे बनेगा, we were sent a letter the day before yesterday. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, we were sent a letter the day before yesterday. Second one, this car it's too old not or to steal. तो जब हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, दिस कार वॉज नॉट स्टोलन, इट्स टू ओल्ड. थर्ड वन, अ न्यू रेस्टोरेंट लास्ट वीक टू ओपन. पास्ट कंटिन्यू में करेंगे इसको तो यहाँ पर ऐसे आएगा, अ न्यू रेस्टोरेंट वॉज बीइंग ओपनड लास्ट वीक. फोर्थ वन, ही टू द पार्टी येस्टरडे और यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा टू इनवाइट. पास्ट डेफिनेट में करना है इसको. सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, ही वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी येस्टरडे. फिफ्थ वन, आई द बुक बाय माई फ्रेंड टू गिव. यहाँ पर वर्ब के तौर पे यूज़ होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने इसको कन्वर्ट करना है. आई वॉज बीइंग गिवन द बुक माई फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल्स. ठीक है, सेल्फ राइटिंग की आ रही है. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम. यहाँ पर हमने पोइम का मेन आइडिया लिखना है. एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. द विंड ऑल्सो हैज़ दीज टू एस्पेक्ट्स. When it is rage, it brings destruction. When it is calm and cool, it gives message of hope and life to everything. Appearances are always deceptive. Truth always lies far away the appearance of things. ठीक है. नेक्स्ट बी क्वेश्चन, पैराफ्रेज द स्टैंजाज ऑफ द पोइम. यहाँ पर हमने इसके स्टैंजाज को पैराफ्रेज की फॉर्म में लिखना है. I hear noise of raindrops falling on leaves. It looks as if leaves are drinking rain. The rich live on the top or giving raindrops, the poor beneath. It is sweet noise to hear. Summary of the poem. The Rain. W.S. Davies is a famous English poet. He is known for his poetry about nature and hardship of the poor. The poem The Rain is a beautiful poem on nature and natural scene. The poem is a musical play of the rain, a great phenomena of nature. The poem also carries symbolic meaning. The poet says that he is hearing the rainfall on the rich leaves on the top. The upper leaves get the raindrops first and quench their thirst. They are full of rain. The falling of raindrops on the light, stiff leaves on the top create sweet music. When the rain will stop, the sun will shine out with all of its wonderful light. This light will fill every dark drop. The drops will shine like pearls. In the end, the poet hopes that the sun will shine brightly, which will make the scene lovely. The poem is also a metaphor. The rich leaves on the top symbolizes the
rich people in the society who get the golden chance first, and whatever remains passed down to the poor. The sunshine also symbolizes the prevailing prosperity and happiness. The wants to convey a strong message that every dark cloud has a silver lining. The poet hopes that the rain will stop and the sun will come out. Hence, the end of the poem is quite optimistic. सो बेटा ये इसके अंदर पूरी की पूरी पोइम की समरी बयान की गई है कि कैसे जो है पोइट जो है अपने ख्यालात का इजहार करता है सोसाइटी को लेके, उनके लोगों को लेके, और वो नेचर को किस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया इस पोइम के ज़रिए। आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी बेटा। जहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है, ग्रामर का, उनको आपने अच्छे तरीके से करना है अपने होमवर्क के तौर पे, और राइटिंग स्किल्स वाले पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। सेंटेंसेस पे, ग्रामर, हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी ना हो। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।